Good to see you too. It's to you because you asked that. So go No, on. it's to you. Yeah, you're the returning member. So yeah. कोशिश है आई मीन इस सीज़न में मैं और पुनीत निहारिका और पुनीत अपनी एक फर्म शुरू कर रहे हैं बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर के क्योंकि फाइनली शी वांट्स टू कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ हर मेंटोर एंड शी इज़ डूइंग दिस विद हिम एंड एक्साइटिंग न्यू जर्नी नए केसेस है दैट शी इज़ वर्किंग ऑन सो सुपर एक्साइटेड ऑफ कोर्स सीज़न 1 को बहुत सारा प्यार मिला है तो उम्मीद यही है कि सीज़न 2 को भी ढेर सारा प्यार मिले ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ work that we've put in, a lot of love we've put in. So I just hope the audience can see that and appreciate our work. And that's all. Neha, in the series teaser, you told that I am my own boss. So can you explain that phrase? I mean, earlier I was working with Janardhan Jetli and his firm. So finally she has her own firm with Puneet. So that's why she calls herself her own boss because she doesn't have to answer to someone else and she can do what she actually believes in, her passion projects, the cases that she believes in. So yeah, I mean, finally getting out of the shadows of her mentor feels great, feeling empowered. Season 1 was like more of suspense and audience were very thrilling, and so can we see the same scenes, thrilling suspense and more than that in season 2? I mean, of course, there are new cases this time around. We've got 3 very interesting cases, and of course, there's the Neeraj case that continues and Vartika's case that we continue on to this season. But there are 3 new interesting cases, and it's going to be definitely thrilling for the audience. आप बताइए काफी डिफरेंट अंदाज में यही अंदाज हाँ नहीं मैं कैरेक्टर में नहीं आया हूँ आज बट नो आई मीन मैं बहुत खुश था जब समर खान ने मुझे कॉल किया मैं उनके साथ दूसरे शो पे भी काम कर रहा हूँ सो व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार वी आर मेकिंग सीजन 2 ऑफ इलीगल और हम चाहते कि आप इसमें शामिल हो तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन द फर्स्ट सीजन आई हैव लाइक्ड व्हाट आई हैव सीन और इंटरेस्टिंग सा रोल था जैसे कि आप आज पोस्टर में देखोगे आई एम द आउटसाइडर क्योंकि मैं नया एंट्रेंट हूँ ये सारे लोग इलीगल के दिग्गज कलाकार है तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट उसके अलावा मैं और कुछ बता नहीं पाऊंगा वो तो शो देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे नहीं आई एम माय लिप्स आर सील्ड पर मैं इस अंदाज में तो नहीं गया हाँ जो भी आपके दिल में आप बता सकते हैं नहीं दिल में तो बहुत कुछ है नहीं पर इलीगल कुछ भी आप बता सकते हैं नहीं You should definitely tell them that you're the आप बताइए कि क्या कुछ joy part of it. Why not? You bring इस बार एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो ज़्यादा बिजी है इस नए लॉ फर्म को स्टार्टअप करने में उसके लिए फंडिंग अरेंज करने में तो मेरी जो इन 10 एपिसोड्स में मेरी लाइफ है वो ज़्यादातर इस तरफ फोकस्ड है लेकिन जैसा नेहा ने कहा कि रेलेवेंट इश्यूज that we read about today they find themselves in the show in the way of different cases things that people talk about whether it's social media whatever and that's how you make a show engaging by just bringing in sort of points of discussion which are being discussed generally in cities and towns and yeah we hope that it brings some sort of a connect with the audience yeah तो सत्यदीप मैं इस सीजन में भी देखने मिलेगा कि आप उसी सेम विलन से लड़ेंगे या फिर कोई और न्यू विलन की एंट्री होगी नहीं विलन तो मतलब एक कॉमन विलन है जो जनार्दन जेटली था पिछले मतलब हमारी तरफ से जो हमारा जो एनिमी था और अब बिकॉज वी रन अ फर्म विच इज अगेंस्ट वी आर ऑन वन साइड ऑफ द केस एंड ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द केस he's become more political now so it's not really a villain I mean technically a lawyer should be allowed to represent anyone that he wants so as a lawyer he has the right to do that but yeah this is just a question of perspective and we look at a situation one way and he looks at it the other way so yeah So Tanuj, you are the main actor. Can you explain your character towards Neha or Guru? Yeah, so firstly it was very exciting for me to be the new entrant over here because आज तक मैंने जितने भी shows किए हैं web पे I've been there for season 1 and then I welcome other people for the subsequent season. So this time it was like बाजी पलट गई थी and it was really interesting for me and also because I'm one of the few guys who does not play a lawyer on the show so I was very relieved that I did not have to memorize any of that legal jargon क्योंकि वो मेरे ज़्यादा समझ में आती नहीं बाउंसर जाता है and yeah he's this
suave, Charming. rich, charming guy who's just like shifted next door and is just there to Shifted in the penthouse. shift into the penthouse. Yes, of course, a very important piece of my character. Yeah. And yeah, But I think your character does bring a lot of joy and fun to the show, because otherwise it's very on camera, serious. off camera. both. We'll go with both. Yeah, because it's a very legal show, so we needed that breather, and, Yeah. that light Comic frothy relief. romance. Yeah, I'm the laughs. Yes, I the tried. laughs and romance and all of that. So yeah, welcome on board, Tanuj. Thank you. लेकिन तनुज जी आजकल जॉयल के पास बहुत सारा काम आ रहा है। हाँ जी। So, अच्छा एक आखिरी सवाल कि ऐसा कोई काम जो आप लोग इलीगल करते हैं? नहीं मतलब अगर कर भी नहीं होते तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है 50 कैमरास के सामने बोलने के लिए। नहीं सर, हम कुछ इलीगल नहीं करते। तो नेहा जी कुछ भी ऐसा I actually have a very boring life, so I like to, I like to live my life by the books, and that's how I've always been. So illegal show का ही नाम है, बाकी सब कुछ legal है हमारे शो में. तनुज जी बताएंगे क्या? तनुज जी क्या बताएंगे? शक्ल से लगता है कि कुछ जो मैं शक्ल से लगता हूँ वो मैं नहीं। The one thing that we want to tell the audience is thank you for giving all the love that you've given to season 1, and season 2 is coming out now on the 25th of November, so it's right here. Please tune in to Woot Select and watch the show and tell us how you like it. थैंक यू गाइस। They're standing here now. They're standing down now. पारुल जी आपको सामने देखना है। Okay. So, good to see you. गुड टू सी यू ब्रदर एज ऑलवेज। Yes. Illegal season 2 पर हम आ गए। तो आप बताइए कि क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने तो आपको 5 बार में भी देखा यहाँ season लीगल 2 का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि सीज़न 2 है और सीज़न 2 अक्सर बजट ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वी हैव मोर कैरेक्टर्स ऑल्सो लाइक तनुज विरवानी, सोनाली सहगल। वी हैव मतलब कास्ट बड़ी हो गई, शो बड़ा हो गया, लुक एंड फील भी बड़ा हो चुका है, विच यू कैन सी इन द ट्रेलर। तो आई थिंक हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। वी आर रिटर्निंग एज आवर कैरेक्टर्स एंड ये अब मेरा तीसरा शो है पारुल गुलाटी जी के साथ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी देखो दर्शक डिसाइड करेंगे। He's thinking which is the. पारुल जी आपको थोड़ा सा किताब के बारे में यहाँ पे जानना चाहिए। कैन वी हैव सम साइलेंस? वेरी हार्ड टू हियर हिम। अगर नेता आप लोग बात कर लो फिर हम लोग कर लेंगे, ऐसे डिसाइड कर लो क्या करना है। हाँ जी, पारुल जी सीजन 2 में आपके किताब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या कुछ डिफरेंट अंदाज में आप So season 1 में भी आप देखते हैं देविका, my character's name is Devika. So she is married to Akshay's character. But अभी कैसे she is just taking the step to get into the family's business and in his life and making that known to him कि मैं तुम्हारी लाइफ में भी हूँ और तुम्हारे बिजनेस में भी हूँ, and this is how it's going to be. They don't have necessarily that husband-wife वाला love, but you get to see a new side to them when they are together. I mean it's an interesting dynamic because it's one of those things जो शादी एक्चुअली किस कारण हुई है, मतलब वो पता चलता है आपको कि धंधे के लिए हुई है कि एक्चुअल प्यार है दोनों के बीच। So I think it's a very interesting dynamic for powerful rich people. तो हम ऐसा माने कि बेस्ट हस्बैंड बन चुके हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आई वुड से कि मैं बहुत गंदा हस्बैंड हूँ, क्योंकि नेहा के साथ भी रिश्ते हैं, पारुल के कैरेक्टर के साथ भी रिश्ते हैं। तो इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड, बट वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है लाइफ में। उसकी गलती भी नहीं है आई वुड से। पर्सनली मेरे किरदार के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिज फादर पीयूष मिश्रा हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज लाइफ एंड उस कारण वो उलझा हुआ है विद बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। So as you said कि आपका नेहा के साथ का संबंध है, वाइफ के साथ का संबंध है, तो सीजन 2 में हमें ये देखने मिल सकता है कि आप उनके साथ अगेंस्ट भी हैं लेकिन साथ में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देयर इज़ अ गर्लफ्रेंड एट वर्क, निहारिका सिंह, नेहा's character, and a wife at home, Parul's character, Devika. Definitely we have tried in this season to work that. Now who he ends up with and who ends up together वो तो आपको देखना पड़ेगा, वो तो मैं बता नहीं सकता। As you told, your character is more bit of confusing, तो at the end आप सुधरते हैं या फिर same? आई थिंक बाय द एंड कुछ चीज़ें सुधरती हैं,
फॉर एग्जांपल बिजनेस के जो भी ताल्लुक है मेरे, आई थिंक वो चीज़ें सुधरती हैं, बट पर्सनल लाइफ ही स्टिल काइंड ऑफ मेस्ड अप, मे बी, आई मीन दैट्स समथिंग यू हैव टू सी व्हाट्स अप, बट ही इज स्टिल कंफ्यूज जनरली. लास्ट सीजन 1 तो बहुत अच्छा गया, सीजन 2 से क्या एक्सपेक्टेशन? यार जितने भी सीजन 1 के व्यूअर्स थे, अगर उनको अच्छा लगा तो आई थिंक आवर वर्क इज डन. आई होप दे वॉच इट, आई होप दे लाइक इट, and that we get new fans of the show. Because we've worked very hard यार. ये बहुत ही मतलब सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये शो थोड़ा मतलब इतने सारे किरदार हैं, इतना सारा लीगल जार्गन है, इतने सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, उनको सही रखना. आई मीन दैट्स व्हाट यू नो द प्रोडक्शन टीम, बायोकॉम, आवर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑल दीज पीपल आर देयर फॉर दैट. बट आई होप दैट वी पुट टुगेदर समथिंग दैट एंटरटेन्स द ऑडियंस. मेरा बहुत सेम सवाल है, आप लास्टली कोई ऐसा काम जो आप इलीगल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ इलीगल नहीं करता हूँ. मैं बहुत अच्छा देश का नागरिक हूँ और मैं ना कभी करूँगा. पारुल? नहीं, मैं कुछ इलीगल करती नहीं हूँ, पर अगर मुझे कुछ करना हो, व्हेन आई शूट विद अक्षय, वो इरिटेट कर देते हैं. सो आई जस्ट वांट टू, कभी बहुत अनॉय करता है अक्षय, तो दैट्स ऑल. You know, she just said I was so cute. Now she's telling me I'm like this. पता नहीं समझ में आ रहा Cute, यार. but I want to kill him sometime. देखो, मेरा किरदार भी कंफ्यूज और मैं भी कंफ्यूज. क्या कर रहे हो पारुल तुम? Thank you. Thank you. So Okay. down, no? बहुत फोटो डालता है तो ना, बहुत फोटो डालते हैं, पूरा फ्लाइट का ही फोटो डालते हैं. कौन नहीं आया था क्या? यादव. हाँ? थैंक यू सर. यही काम है क्या हम लोग का? बस हो गया, खत्म हो गया. हाँ नहीं, एक का भी कुछ चालू नहीं. अपना अपना खुद का मैम लू किया, दारू मैम लू किया. थैंक यू. एक्सपायर हो जाएगा. लगा पड़ा होगी, झटका से खींच रहा ना भाई. ए भाई, इसका जाते जाते एक्सपायर हो जाएगा. ये बतावा मैं तो बोल दूंगा इस और नहीं है मेरा है. हाँ क्या? ये? तो खाली क्या बना रहा है रे? हाँ ये थोड़ा डोर बंद कर दीजिए. So I look at you only, no? Look at me. That's better because. Look at camera, look at me. Anywhere, look at up and down. Anywhere. Good. Alright, good to see you, Parul ji. You know, illegal season 1 हमने देखा, लोगों ने बहुत ही appreciate किया. ना आप बताइए कि season 2 में कैसा रहा आपका experience? एक्सपीरियंस तो शूट करने का अच्छा ही होता है हमेशा. इट्स वेरी रेयर कि आपका बुरा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज एक तो हमारा काम है, ये हमें सेट पे जाना है, काम करना है. बट ऑफ कोर्स सीज़न 2 आप किसी भी शो का करते हैं, बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उस टीम के साथ काम कर चुके हैं, सो यू गेट टू वर्क विद देम अगैन एंड इट्स ऑलवेज नाइसर ओनली. बट इस टाइम मेरा कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है. सीज़न 1 में थोड़ा कम था मेरा किरदार, इस बार थोड़ा बढ़ गया है.
और थोड़ी उसके अंदर अब पावर्स भी और हैं और थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो शी यूटिलाइजेज मोर एज अ कैरेक्टर, जो मैंने सीज़न 1 में नहीं की थी. सीज़न 1 में आई वाज जस्ट द वाइफ. या हम ऐसा माने कि यहाँ पर खुल के आपको किरदार दिया गया कि आप खुल के जियो जितना जीना है. खुल के तो नहीं पता, पर इतना है कि अभी वो अपना खुद का स्टैंड ले रही है. यू सी हु देविका इज़ एंड क्यों देविका और अक्षय की लाइफ में या मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी पहले, और किस चीज़ की वजह से उनकी शादी हुई थी या क्या है, वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं. सीजन 2 थोड़ा सा और बताइए कि और क्या कुछ पारुल जी को हम किस अंदाज में देखने वाले हैं जब उनके हस्बैंड इरिटेटिंग हो जाए. क्या कुछ करना चाहिए एक नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, करना तो बहुत कुछ चाहिए. कर तो बहुत सकती है नारी. नारी शक्ति इज़ द सुपर थिंग, राइट. लेकिन वो जो करती है इसमें शी हैज़ हर ओन वेज कि इवन इफ दे हैव अ फाइट या फिर वर्क रिलेटेड, बट यू सी देविका पारुल एज अ बिजनेस वुमन. आई डोंट थिंक इन मैनी other shows I've been seen as a businesswoman or someone who's taking care of a law firm in a way. So मेरे scenes जो हैं ज़्यादा पीयूष जी के साथ हैं और अक्षय के साथ हैं, बिकॉज मैं ऑफिस में हूँ इस बार. ऑफिस लाइफ में आप मुझे देखते हैं. सो यू नो सीजन 1 लोगों ने बहुत ही एप्रिशिएट किया. सीजन 2 से ऐसे कुछ प्रेशर बढ़ गया था कि वन को लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया एंड 2 सो पारुल जी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ गई और भी आपको जिम्मेदारी आपकी बढ़ा दी गई है सीजन 2 में. हाँ, कि सीज़न 2 में मेरे किरदार की जिम्मेदारी बढ़ गई है. पहले कैरेक्टर छोटा था, उतना फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, पर शो इतना बड़ा हिट हो गया. अब सीज़न 2 के अंदर जो है मेरा कैरेक्टर बड़ा है, तो मुझे भी है थोड़ा एंटिसिपेशन है कि एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है हाउ पीपल वुड लाइक इट एंड आर दे एंटिसिपेटेड टू वॉच कि क्या होने वाला है. अब यहाँ पर तो कुछ न्यू एंट्री भी हुई है. तनुज है. तनुज की एंट्री नहीं हुई, तो आप बताइए कि और कितना कुछ डिफरेंट होने वाला है. डिफरेंट तो यही है कि स्टेक्स आर हाई. जैसे आपने देखा कि अब इट्स पहले वो साथ में काम कर रहे थे, नेहा एंड पीयूष जी. अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. सो ऑलरेडी एक बड़ा वो है. अचिंत कौर नहीं है, उनके साथ मैं ऑलरेडी पहले बहुत काम कर चुकी हूँ. एंड देन इसमें कोई सीन साथ में नहीं है, बट शी इज़ प्लेइंग अ CM इन दिस. सो अचिंत जी नहीं हैं, तनुज नहीं हैं. सो कास्ट इज़ ह्यूज ऑफ दिस शो. बिल्कुल. शूटिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताइए. जब ऑन सेट पे फर्स्ट डे आप लोग सब गए हैं, कुछ क्या कुछ कोविड का भी कुछ टाइम था या मतलब अभी का ही टाइम था जब हमने किया है सेकंड वेव के दौरान. कैन आई से दैट? हाँ, सो ड्यूरिंग द सेकंड वेव व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस. सो ऑफ कोर्स हार्डशिप्स तो रहे काफ़ी कि हम कैसे भी करके इस शो को बना दें, क्योंकि पिछले साल से हम कर रहे थे कोशिश कि ये जल्दी बनाया जाए. जब सबकी डेट्स आई साथ में एंड व्हेन वी डिड इट वाज द फास्टेस्ट फिनिशिंग शो फॉर मी, बिकॉज इसके बीच में अभी 2 शोज़ कर रही हूँ, अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं, और ये वाला बीच में ख़त्म होकर रिलीज़ भी हो रहा है. सो इट जस्ट फेल्ट वेरी गुड. सो अश्विनी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस है, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता होता था क्या शॉट है, कहाँ है, क्या नहीं है. आई डोंट थिंक हमें कभी भी कोई डीले हुआ इस सेट पे. हम जाते थे, वी वर ऑलवेज, द क्रू वॉज बिफोर टाइम. आई नेवर हैड टू वेट ऑन दिस सेट. वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी. बैक टू बैक काम कर रहे हैं आप और भी ढेरों सारे शो करें, तो बताइए कि कितना टाइम मिलता है आपको लाइक घर के लिए. नहीं, एक्टर्स बहुत वक्त होता है एक्टर्स के पास. हम वो 20 दिन शूट करते हैं, उसके अलावा हम सिर्फ घर पे ही होते हैं. बट मेरा बिकॉज बिजनेस है, तो मैं अपने थोड़े बिजनेस में बिजी रहती हूँ. रियल में ही बिजनेस है. रियल बिजनेस तो रियल में ही है. सो बिकॉज मेरा बिजनेस भी है, तो मैं थोड़ा अपने बिजनेस में बिजी होती हूँ, और जब नहीं होता तब शूट कर रही होती हूँ, या डबिंग्स या मीटिंग्स या इंटरव्यूज़. सो इट्स एक्साइटिंग लाइफ. सुपर्ब. एंड 25th of November, so आप बताइए Yes. कि ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए सीजन 2. ये उनके लिए है जिनको सीज़न 1 अच्छा लगा, और उनके लिए भी है जिन्होंने सीज़न 1 नहीं देखा, तो आप सीज़न 1 और सीज़न 2 साथ में देख सकते हो वोट सेलेक्ट पे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू जी. शॉर्ट्स करने कटवे आपको ही देखो ना. कहीं भी देख सकते हैं आप. ईबू को भी देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं. चले. गुड टू सी यू. वेरी गुड टू सी यू सर. और एक बार मिल रहे हैं हम. एब्सोल्युटली. सो बताइए कि मैं सबसे बताता हूँ मीडिया में कि आप मेरे लकी चार्म हो. आप जो भी इवेंट के लिए आते हो ना, फिर वो प्रोजेक्ट अच्छा कमाल का कर जाता है. लीगल भी देखना आप. धमाका
हाँ हाँ प्लान वही है, तो अभी पता चलेगा, इम्तिहान होगा अभी 25 तारीख से जी। सो बताइए क्या कुछ कौन कौन से काम इलीगल होने वाले हैं? इस पर आई मीन मेरी तो नई एंट्री है, यू नो आई थिंक मेरे करियर में, वेब सीरीज़ करियर में ये पहली बार हुआ है दैट आई एम एंटरिंग इन सीज़न 2, बिकॉज नॉर्मली मैं सीज़न 1 से रहता हूँ और फिर बाकी जितने भी कलाकार एक्टर्स आते होते हैं, आओ आओ सीज़न 2 के लिए, सीज़न 3 के लिए आओ। सो दिस टाइम इट वाज अक्षय, नेहा एंड एवरीबडी एल्स ऑन द स्टारकास्ट जिनने मुझे कहा कि आओ दरबार में शामिल हो जाइए। सो इट्स बिन अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। इस शो पर मैं राघव मल्होत्रा जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है उनका किरदार निभा रहा हूँ। ही इज़ नॉट अ लॉयर, बिकॉज सबका पहला सवाल ये आप लॉयर, आप भी लॉयर हो? नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ इस पर, बट ऑफ कोर्स जो कोर्ट रूम्स में होते हैं वो मुझे बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग रोल। सो लॉयर तो आप नहीं हैं, और क्या कुछ धमाका करने वाले लॉयर भी नहीं हो, लायर भी नहीं हो, हाँ शो पे, रियल लाइफ में हैं? भी। और क्या कुछ इसके अलावा धमाका करने वाले हैं आप? प्रॉब्लम क्या है ना कि ये एक नया कैरेक्टर है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग विल बी स्पॉइलर, तो वो हम 25 नवंबर के बाद में बात करेंगे। सो इलीगल आपने शायद देखी होगी। Yes, yes, yes. जिस तरह से कोर्ट रूम ड्रामा है, Yeah. जिस तरह से है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जी सीजन 2 में आपकी एंट्री होने से कुछ प्रेशर फील करते हैं? सी नहीं, आई डोंट फील प्रेशर। आई मीन अगर प्रेशर फील करना हो तो इनको ही प्रेशर फील करना होगा, बिकॉज द हाइप हैज़ बिन बिल्ड, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा बनाया है सीजन 1 में, तो अभी उनके कंधों पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीजन 2 में अच्छे को और अच्छा करना है। फॉर मी दिस इज़ लाइक अ सीजन 1, बिकॉज ये मेरे कैरेक्टर के लिए और रियल लाइफ में भी ये मेरे लिए एक सीजन 1 जैसा ही है, यू नो, तो प्रेशर की बात नहीं है। बट मुझे डेफिनेटली लगता है कि द राइटिंग, द प्रोडक्शन क्वालिटी, जस्ट द ओवरऑल सेटअप सीजन 2 में इट इज़ द क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, एंड होपफुली आप सब मानोगे मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोलते हो वो हम मान लेते हैं। नेहा एंड अक्षय के साथ में आज आपके जो scene जी है, कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग? वेरी गुड यार। तो अक्षय और मैं पहले से दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट हम इनसाइड सीजन 3 पे भी एक साथ काम कर रहे हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। सीजन ऑफ इनसाइड, यस यस। तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब समर खान ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे कहा कि ही वांटेड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। आई एम लाइक ग्रेट, इट्स लाइक होम। आप हो जिनके साथ मैं कोडेम पर काम करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली एंड मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स नेहा के साथ ही है। सो आई डिड नॉट नो बिफोर द शो, बट उनके साथ भी एक बहुत ही अच्छा सॉलिड सा फ्रेंडशिप बन गया है, एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड, बिकॉज जब आपका जो डायनामिक अपने को-स्टार्स, अपने दोस्तों के साथ अच्छा होता है, इट शोज़ ऑन स्क्रीन, यू नो। किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, या यू नो कम्पिटिटिवनेस नहीं है, यू नो। वी आर ऑल वर्किंग एक साथ टू ट्राई एंड मेक द सीन वर्क, बिकॉज अगर सीन काम करेगा तो हम काम करेंगे, अगर सीन काम नहीं करता इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाट वी डू। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है प्रोड्यूसर? एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ना, एक फैमिली सा माहौल बन जाता है, यू नो। जब आप नए लोगों के साथ काम करते हो तो यू आर स्टिल लिटिल वेरी, यू नो, मे बी बिकॉज यू हैव हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट, आप पेपर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी मैनेजर ज़्यादा काम संभालेगी। बट हियर वेदर समर खान, वेदर इट्स माई को-स्टार्स, दे नो दे कैन जस्ट टॉक टू मी डायरेक्टली, और जो भी अगर कुछ मामला है या कुछ प्रॉब्लम है तो वी विल जस्ट सॉर्ट इट आउट। जैसा कि मैंने पीसी में भी आपको पूछा, कुछ ऐसे काम इलीगल भी इसमें होने वाले हैं आपकी तरफ से या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट यार, बिकॉज आई मीन ये जैसे कि मैंने आपसे कहा, ही इज़ अ वेंचर कैपिटलिस्ट, तो ये बहुत ही सॉर्टेड सा बंदा है, तो ये कुछ इलीगल काम तो नहीं करता है, चाहे वो हैबिट्स हो या बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस हो, तो ही डज नॉट डू दैट। बट हाँ, वो तो आप देखोगे 25th ऑनवर्ड्स। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को 25th? यस, जिन ने सीजन 1 देखा है इलीगल का, तो थैंक यू, बिकॉज उसकी वजह से सीजन 2 बनने जा रहा है एंड रिलीज होने जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और जिन ने नहीं देखा है या भूल चुके हो और यू वांट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, आपके पास अभी 5 दिन है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और उसके बाद 25 तारीख से वी विल हैव ऑल एपिसोड्स स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन वूट सेलेक्ट। थैंक यू सो मच। मैं आपको 25th को रिप्लाई करता हूँ। प्लीज। और अभी 22 का क्या करना है?